بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج میں آپ کو انگلش کے کچھ ایسی چیزیں پڑھانے لگا ہوں جو کہ آپ 5th اسٹینڈرڈ سے لے کر میٹریکولیشن تک یوز کرتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سیکھیں گے. 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں اور 10ویں یہ ان تمام کلاسز کے لیے ہیں. کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور میں ان کو جو ہے اپنی ڈیٹیل تو نہیں لیکن کچھ جو ہے ان کو میں بریف کروں گا. جیسا کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے دا سینٹینس پڑھانے سے پہلے میں کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو بریف کروں گا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیٹر ورڈ. انگلش الفابیٹ ABCD up to Z are called letter. اگر الگ الگ ان کو ہم بولیں A علیحدہ B علیحدہ C علیحدہ D علیحدہ انڈیویجولی یہ لیٹرز کہلاتے ہیں. اور when I and O یہ دو کے ساتھ ایک علیحدہ اس کی کنڈیشن رہتی ہے are used separately. اگر ان کو علیحدہ استعمال کیا جائے I اور O کو تو ہم ان کو ورڈ کا نام دیتے ہیں اور اسے کیپٹل فارم میں لکھا جاتا ہے. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. I repeat once again for you. English alphabet A to Z are called letters. Letters کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس کو لیٹر اور ورڈز کے بارے میں فرق نہیں پتا ہوتا، تو یہ بیسک لیکچر ہے، سیکھیں، آپ کو فائدہ ہوگا کہ A سے Z تک یہ جو جتنے بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ان تمام کو انگریزی میں لیٹر کہا جاتا ہے. لیکن I اور O پر کنڈیشن میں زیادہ اپلائی ہوتی ہے. کچھ سچویشن میں جب ان کو سیپریٹلی یوز کیا جاتا ہے تو ان کو ورڈز بھی کہا جا سکتا ہے اور ان کو کیپٹلز میں لکھا جاتا ہے. یہ نیچے اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، انگریزی میں یہ جو حروف ہیں ان کو یہ لیٹر اور حروف کہا جاتا ہے. البتہ I اور O کو علیحدہ استعمال کیا جاتا ہے، اسے ورڈ کہا جاتا ہے اور اسے کیپٹل میں لکھا جاتا ہے. اب ہم ورڈز کو آتے ہیں. What is the difference between letter and word? When two or more than two letters جب دو یا دو سے زیادہ لیٹر کو جوائن کر دیا جائے تو وہ ورڈ بن جاتا ہے. لائک جی او گو، دو ورڈ جو لیٹر ہیں جی اینڈ او ان کو اکٹھا گو ورڈ بن گیا. جی او ڈی گاڈ 3 لیٹرز ہیں ورڈ بن گیا. ایل آئی لائی، ایل آئی کے لائی 4، ایل آئی وی لائی کم اینڈ اے ٹی سی وغیرہ وغیرہ. یہ جو ہے نا یہ جو تمام ہیں ان کو ورڈز کہتے ہیں. کیوں ورڈز کہتے ہیں؟ جب دو یا دو سے زیادہ لیٹر اکٹھے کر دیے جائیں تو وہ ورڈ کہلاتا ہے. وہ میں نے اردو میں لکھا تو دو سے زیادہ حروف اکٹھے کیے جائیں تو یہ ورڈ یعنی لفظ بن جاتا ہے. اسٹوڈنٹ آسانی کے لیے میں زیادہ لیکچر جو ہے وہ اردو میں دوں گا تاکہ آپ کو زیادہ کنوینئنٹ ہو، آپ کے لیے زیادہ آسان ہو ان چیزوں کو سمجھنا. اب ہم چلتے ہیں سینٹینس پہ. جناب سینٹینس جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے جملہ a group of words. پہلے لیٹر سے ورڈ بنا، ورڈ کے گروپ سے سینٹینس بنے گا. a group of words which gives a complete sense. جس سے ہمیں بات کا مفہوم یا بات سمجھ آ جائے اس کا سینٹینس. الفاظ کا مجموعہ جو مکمل مفہوم دے جملہ کہلاتا ہے. مثلا I go، دو ورڈز کو ملایا ایک سینٹینس ہوا. سینٹینس گروپ آف ورڈز. سینٹینس از اے گروپ آف ورڈز. اللہ از ون گروپ آف ورڈز. یہاں پہ آپ کے پاس 3 ورڈز ہیں. Similarly so on. The sun is stationary. 1 2 3 4. یہ 4 ورڈز کو جب ہم نے کمبائن کیا، جوائن کیا، it becomes sentence. تو یہ سینٹینس بن گیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیٹر، ورڈ اور سینٹینس میں فرق سمجھ آیا ہوگا. What is the difference between letter and word and as well as sentence? لیٹر اکیلے حرف کو لیٹر کہا جاتا ہے. اگر ہم ان لیٹرز کو یعنی حروف کو اکٹھا کر دیں، جوڑ دیں، دو یا دو سے زیادہ حروف مل جائیں تو یہ ورڈ بنتا ہے. اور اگر دو یا دو سے زیادہ ورڈ یعنی لفظ جڑ جائیں تو یہ جملہ
यानी सेंटेंस बनता है। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों चीजें आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। जी नाउ वी शुड डिस्कस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस, जुमले की बनावट। अब हम इस पे बहस करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। As regards construction, the sentence had two parts. बनावट के लिहाज से जुमले दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। स्टूडेंट इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। सब्जेक्ट 5. The part of sentence about which something is said is called subject. जुमले का वो हिस्सा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, हम आम इस्तिलाह में आसानी के लिए यूं भी कह सकते हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। वो लफ्ज जिसके मुतालिक फिक्रे में कुछ बताया गया हो फाइल कहलाता है। आई रिपीट वंस अगेन, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। जुमले में जो बंदा काम कर रहा है, नायला रोटियां पका रही है, नायला सब्जेक्ट है, नायला के बारे में बताया जा रहा है। अनवर क्रिकेट खेल रहा है, अनवर सब्जेक्ट है, अनवर के बारे में बताया जा रहा है। असलम और अनवर नमाज अदा कर रहे हैं, ये दोनों सब्जेक्ट हैं। लड़के कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, लड़के सब्जेक्ट है। द पार्ट ऑफ सेंटेंस about which something is said, इसके बारे में कुछ कहा जाता है, is called subject. इसे सब्जेक्ट कहा जाता है, यानी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। द सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस प्रीडिकेट। जी द पार्ट ऑफ सेंटेंस which tell something about the subject. जी फिक्रे का वो हिस्सा तो ये बयान करता हो कि सब्जेक्ट अब क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम क्या है, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट और अगले हिस्से में वो क्या काम कर रहा है, ये हमें बताना होता है। फिक्रे का वो हिस्सा जो बयान करे सब्जेक्ट के मुताबिक कुछ ना कुछ बताया है या कोई खबर कहलाता है, जैसे ये मसलन या खबर कहते हैं। इसके मजीद दो हिस्से होते हैं, आसानी के लिए ये मजीद इसके दो हिस्से होते हैं। जैसे मैं पहले इसकी एग्जांपल देता हूं, द गर्ल्स सब्जेक्ट आर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो लड़कियां क्या कर रही हैं, जो आगे काम कर रही हैं, गाना गा रही हैं। द सब्जेक्ट द प्रीडिकेट। प्रीडिकेट मजीद दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, उसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन वर्ब में मजीद हैवी वर्ब एंड वर्ब होते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट जुमले के दो हिस्से होते हैं। प्रीडिकेट को मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है आगे। तो सब्जेक्ट काम करने वाला और प्रीडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो खबर दी जाती है, जो काम किया जाए, वो प्रीडिकेट कहलाता है। जी ये इसमें मैंने बताया इस जुमले में द गर्ल्स के मुताबिक बताया जा रहा है, गर्ल सब्जेक्ट, और ये जो बताया जा रहा है इसको प्रीडिकेट्स कहा जाता है। प्रीडिकेट्स दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, हैप्पी वर्ब, वर्ब, इमदादी फेल और फेल। जी दे आर यूज्ड एज हेल्पर टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। जुमले का मायनी फज़ाहत करने के लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वर्ब की भी मदद करता है, वर्ब के साथ इसको लिखा जाता है। दे आर यूज्ड टू हेल्प द क्लैरिफाई। ये जुमले के मायने को मजीद वजाहत पेश करने के लिए, इसके मफहूम की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसकी एग्जांपल में ये स्टूडेंट्स, ये कुछ हेल्पिंग वर्ब मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखे हैं। हेल्पिंग वर्ब कहा जा सकता है डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं कि हम वक्त के साथ साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम जो हैं, ये यूजुअली हम मोस्टली ये इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम हेल्पिंग वर्ब है, आपने याद रखना है, ध्यान में रखना है। जी अब हम ये मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताया, तो ये देखिए जी, दे आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब। इनको वर्ब से पहले इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वी आर प्लेइंग हॉकी
सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब है प्लेइंग और हॉकी आपका सब्जेक्ट है। तो ये जो आर इज एम आई ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब से पहले इस्तेमाल किया जाता है जुमले के मफहूम की वजाहत के लिए, मफहूम क्लियर करने के लिए कि हमें जुमले की समझ आ जाए, वजाहत हो जाए जुमले की। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब काफी ज्यादा लिखे भी आपके लिए। अब हम वर्ब की तरफ चलते हैं। एक्शन ऑफ सेंटेंस, द वर्ड वी डिनोट बीइंग ए हैविंग, डूइंग एक्शन और स्टेट कोई बयान या कोई एक्शन जिसमें हम बताएं वो वर्ब हमें एक्शन ऑफ सेंटेंस बताता है। काम का करना, होना या सहना। आम आसान लफ्जों में हम ये अक्सर बोलते हैं काम का करना, होना या सहना वर्ब कहलाता है। जैसे ऐसा लफ्ज जिसमें की शक्ल में होना, मलकियत, करना, अमल, हालत जाहिर करे वर्ब कहलाता है। काम का करना, होना या सहना वर्ब कहलाता है। तो जनाब ये जो है इसके बगैर जुमला जो है वो उसकी समझ ही नहीं आती। जैसे पंखा हवा है, पंखा हवा देता है। अनवर रोटी है, अनवर रोटी खाता है। खाना, पीना, उठना, बैठना, आना, जाना, हंसना, रोना, गाना, सोना, ये तमाम जो हैं ये वर्ब्स हैं और भी दुनिया में बेशुमार वर्ब्स हैं। कुछ मैंने स्पेसिफाइड यहाँ पे कर दिए हैं, ये जरा आप देखें। स्पेसिफिकली मैंने इनको बयान किया है। बीइंग ए वर्ब, एग्जैक्टली जो इनको वर्ब के तौर पर बोला जाता है वो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, विल, शैल और वो तमाम जो मैंने पहले इस्तेमाल किए हैं। ये बीइंग ए वर्ब, जैसे अहमद इज अ बॉय, ये तमाम जो है इज अ बॉय, इज अ बॉय, यहाँ पे बीइंग ए वर्ब इस्तेमाल होता है। हालांकि पहले मैंने ये क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। अच्छा अब ये जो वर्ब है इसमें हैविंग वर्ब शी हैज अ बुक, मलकियत में आ गया। तो यहाँ पे हैविंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। डूइंग वर्ब्स, आई रीड अ बुक, रीड, डूइंग वर्ब्स काम करना कोई। एक्शन वर्ब, द बॉय हिट द बॉल, हिट एक्शन वर्ब। एंड स्ट्रेट वर्ब्स, द रोज लुक्स ब्राइट, तो ये जो लुक्स है ये स्ट्रेट वर्ब है जी। तो ये वर्ब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सब्जेक्ट काम करने वाला, प्रेडिकेट्स हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट में होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब से पहले मैंने बता दिए। वर्ब एक्शन ऑफ सेंटेंस, काम का करना, होना या सहना। और ऑब्जेक्ट अब हम डिस्कस करेंगे जी। ऑब्जेक्ट जो है a word or a phrase governed by a verb or preposition or which receive the action is placed after the verb। अगर मैं बिल्कुल आसान लफ्जों में बता दूं तो इसे यूं भी कहा जा सकता है, एक इस्लाम में सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, जिस पर फाइल के काम का असर हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जिस पर फाइल के काम का असर, यानी जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट, जिस पर काम किया जा रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसकी मिसाल मैं दूंगा, अनवर इज प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेली जा रही है, अनवर खेलने वाला है। तो ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। ही इज राइटिंग अ बुक, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। किताब, इस पर काम किया जा रहा है। जैसे अनवर अली को मारता है, अनवर मारने वाला, अली मार खाने वाला। अनवर को सब्जेक्ट कहेंगे, अली को ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको जो है सेंटेंस के बारे में कुछ समझ जरूर आई होगी। ये मैंने बहुत डिटेल में नहीं लेकिन कुछ वजाहत दी है जिन बेसिक चीज़ों को आपको ज़हन में रखना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं मज़ीद चीज़ें ब्रीफ करूँगा।